وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون اور آراف والے کچھ لوگوں کو پکاریں گے، ان کو ان کے چہروں سے پہچانتے ہوں گے اور ان سے کہیں گے آج تمہاری جمعیت اور جو تم تکبر کرتے تھے تمہارے کوئی کام نہ آئی۔ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ کی رحمت انہیں نہ پہنچے گی؟ آراف والے دوزخیوں کو جن کو وہ ان کے چہروں سے پہچانتے ہوں گے ان سے خطاب کریں گے کہ تم دنیا میں بڑا تکبر کرتے تھے، تمہاری جمعیت اور تمہارے مال تمہارے کوئی کام نہ آیا اور تمہیں اس نے اس عذاب سے نہ بچایا۔ اور ساتھ ہی وہ جنت کے لوگوں کی طرف اشارہ کریں گے کہ یہ لوگ تم ان کے بارے میں قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ کی رحمت انہیں نہ پہنچے گی، تم انہیں حقیر سمجھتے تھے، آج بتاؤ آج تم دوزخ میں ہو، یہ جنت میں چلے گئے ہیں۔ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ان لوگوں کو اللہ کی رحمت نہ پہنچے گی، حالانکہ اللہ نے ان کے بارے میں حکم دے دیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر کوئی خوف نہ ہوگا اور تم غم کھاؤ گے۔ اور آگ والے جنت والوں سے کہیں گے ہمارے اوپر پانی انڈھیل دو، یا جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ رزق دیا ہے۔ تو جنت والے کہیں گے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں اور پانی کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا، دنیا کی زندگی انہوں نے دھوکہ دے دیا تھا، تو آج کے دن ہم بھی انہیں بلا دیں گے جیسا کہ انہوں نے قیامت کے دن کی ملاقات کو بلا دیا تھا۔ تو جو قیامت کے دن کی ملاقات کو بھول جاتا ہے اللہ بھی اس کو بلا دیتے ہیں، اور جو قیامت کے دن کی ملاقات کو یاد رکھتا ہے، آخرت کے حساب کو یاد رکھتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ بھی اسے یاد رکھتا ہے۔ یاد کر لیجئے وہی وعدہ جو اللہ نے کیا تھا سورہ بقرہ میں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کیا کرو میں اللہ تمہیں یاد کروں گا۔ آخرت کے دن کو یاد رکھا کرو،
اللہ तुम्हें याद रखेगा। और जो अल्लाह को आखिरत के दिन को भूल जाता है, अल्लाह उस पर रहमत करना भूल जाता है। और वो हमारी आयत के साथ इनकार किया करते थे, और हम तुम्हारे पास एक किताब लाए हैं जिसको हमने अपने इल्म की बिना पर खोल खोल कर बयान किया है। वो हदायत है, रहमत है ईमान लाने वाली कौम के लिए। क्या ये लोग अंजाम के मुंतज़िर हैं? जिस दिन अंजाम आ जाएगा तो वो लोग जो कि उसको भूले हुए थे इससे कबल, वो कहेंगे हमारे रब के पैगंबर हमारे पास हक के साथ आएंगे, और क्या हमारे लिए कोई सिफारिशी हैं कि वो हमारे लिए सिफारिश करें, या हम दुनिया में दोबारा लौटा दिए जाएं तो अब हम वो अमल करेंगे जो हम पहले नहीं किया करते थे। यानी अब हम तमाम नेकी के अमल किया करेंगे। क़यामत वाले दिन ये कुफ्फार का अल्लाह से मुतालबा होगा कि हमें दोबारा दुनिया में भेज दे। अब हम पहले जैसे अमल नहीं करेंगे बल्कि अब हम नेक अमल करेंगे। उन्होंने अपनी जानों को खसारे में रखा और उनसे खो जाएगा जो वो झूठ बांधा करते थे। बेशक तुम्हारा रब वो अल्लाह है जिसने जमीन और आसमान को 6 दिनों में पैदा किया और फिर वो अर्श पर मुस्तवी हो गया। वो रात को दिन से डांप देता है और दिन रात के पीछे दौड़ा चला आता है। आपने कभी देखा कि कभी दिन के बाद रात, रात के बाद दिन ही हमेशा आती है? कभी ऐसा नहीं होता कि दिन के बाद दिन आता हो। ये अल्लाह ताला की हुकूमत है, ये अल्लाह ताला की बादशाही है कि कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि दिन के बाद रात ना आई। वो उसके पीछे दौड़ा चला आता है। सूरज, चांद, सितारे सब अल्लाह के हुक्म से मुसख्खर हैं। सुन रखो, अल्लाह ही खालिक है और उसी का ही हुक्म चलेगा। जो खालिक हो वही हक रखता है कि उसकी अताअत की जाए। हमारे छोटे से घर होते हैं, हमारे छोटे से घरों में हमारे शौहर और हमारी औलाद के वालिद होते हैं। वालिद का क्या कहना होता है? ये मेरा घर है, यहाँ मेरा हुक्म चलेगा। तो ये कायनात अल्लाह का घर है, यहाँ पे किसका हुक्म चलेगा? अल्लाह का। अब जो अल्लाह के घर में रह के अल्लाह की नाफरमानी करता है तो फिर अल्लाह उसे सजा देता है। बड़ी सादी सी बात है। अल्लाह जब खालिक है, अताअत का हक सिर्फ उसी को। ये बात अगर हमें समझ आ जाए तो हम अल्लाह की नाफरमानियों से बच जाएं। वैसे भी मैं आपको बताऊं, इंसान के पास कोई इख्तियार है ही नहीं। हमने मर के लाजमन अल्लाह को मुंह दिखाना है, हमने मर के लाजमन कब्र में जाना है, हमने लाजमन अल्लाह को हिसाब किताब देना है। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। अल्लाह की फर्माबरदारी किए बगैर हम अल्लाह से भाग के कहीं जा नहीं सकते। खबरदार, अल्लाह ही के लिए, अल्लाह ही खालिक है, हुक्म भी उसी का चलेगा। बरकत वाला है अल्लाह जो तमाम जहानों का रब है। अपने रब को पुकारो गिड़गिड़ा कर, खुफिया तौर पर। अल्लाह ताला हद से बढ़ने वालों को से मोहब्बत नहीं करता। दुआ अल्लाह को बहुत पसंद है। एक चीज है जो बंदे के पास तो है लेकिन अल्लाह के पास नहीं। वो कौन सी चीज है? आजिज़ी। अल्लाह के पास हर दुनिया के सिर्फ है, एक चीज है जो बंदे के पास मौजूद है और अल्लाह के पास नहीं। और वो कौन सी है? आजिज़ी, इनकसारी। तो अल्लाह को आजिज़ी के साथ गिड़गिड़ा कर खुफिया तौर पर अल्लाह को पुकारो। अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। और खास तौर पे ये रमजान के दिन हैं। रमजान में अल्लाह ताला हर वक्त लोगों को दोज़ख से आजाद करता रहता है। खास तौर पर पिछली रात के आखिरी पहर में अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर नज़ूल जलाल फरमाते हैं, खुद आवाज देते हैं, हल मिन मुस्तगफिरिन, है तो बख्शिश मांगने वाला, मैं उसको बख्श दूं। इन दिनों से फायदा उठाइए। हम औरतों ने सहरी बनाने के लिए तो जागना ही जागना है। उस सहरी के वक्त में से कुछ वक्त उस वक्त इस्तिगफार के लिए, दुआ के लिए रख लीजिए। और याद रखिए, अद्दुआ हुवल इबादत, अद्दुआ मुख्कुल इबादत, दुआ असल इबादत है, वो इबादत का मगज है। अल्लाह ताला हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। जमीन में उसकी इस्लाह के बाद फसाद न करो और अल्लाह ताला को खौफ और उम्मीद से पुकारो। अल्लाह की रहमत नेकी करने वालों से करीब है और वो वही जात है जो हवाओं को बारिश से पहले खुशखबरी देने के लिए भेजता है। हत्ता कि जब वो हवाएं भारी बादल उठा लाती हैं,
तो हम इन बादलों को किसी मुर्दा इलाके की तरफ चला देते हैं, फिर हम उससे पानी नाजिल करते हैं, उसके साथ हम हर तरह के फल उगाते हैं। इसी तरह हम मुर्दों को जिंदा करेंगे, जैसे अल्लाह मुर्दा जमीन को जिंदा करके उसमें से नबातात उगाते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला इंसानों को कब्रों से जिंदा करके हशर के मैदान में खड़ा कर देंगे। शायद कि तुम नसीहत हासिल करो। और उम्दा जमीन अपने रब के हुक्म से सब्जा उगाती है, और जो खराब होती है उसमें से जाड़ फूस के अलावा और कुछ नहीं निकलता। इसी तरह हम आयात को खोल खोल कर बयान करते हैं, फेर फेर कर बयान करते हैं, ता उस कौम के लिए जो शुक्र करती है। जमीन के बाज़ हिस्से जरखेज और शादाब होते हैं, बाज़ बंजर होते हैं। यही हाल इंसानों का है। अल्लाह ताला की हदायत सब इंसानों के लिए एक जैसी होती है। जैसे बारिश जरखेज हिस्सों पर भी पड़ती है और बंजर हिस्सों पर भी पड़ती है, लेकिन जरखेज हिस्सों पर पड़ती है वहां से ढेर सब्जा उगता है, बंजर हिस्सों पर पड़ती है तो कुछ भी नहीं उगता। इसी तरह अल्लाह की हदायत की बारिश जो है तमाम इंसानों पर पड़ती है। जो इंसान उस हदायत को कबूल कर लेते हैं वो उससे फायदा उठा लेते हैं, और जो दिल गाफिल होते हैं वो इससे फायदा नहीं उठाते, बंजर जमीन की तरह। अल्लाह की रहमत बराबर है। असल बात है दिल उसको किस अंदाज में कबूल करते हैं। तो अपने दिलों को कबूल करने वाला बनाइए। अल्लाह ताला हमारे दिल ऐसे बना दे कि वो अल्लाह की हदायत उनके अंदर उतर के रह जाए। अल्लाह ताला हमारे दिलों में अपनी हदायत को गहरा कर दे। और हमने हजरत नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा और उसने कहा है मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ। उसकी कौम के सरदारों ने कहा कि हम तो तुझे वाज़े गुमराही में देखते हैं। हजरत नूह कहने लगे मैं गुमराह नहीं हूँ, लेकिन मैं तो रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूँ। सबसे पहले तौहीद की दावत जिस नबी ने दी वो हजरत नूह थे, क्योंकि इनकी कौम ही सबसे पहले शिरक की गुमराही में मुब्तला हुई। हजरत नूह की दावत का मरकज इराक था। उस वक़्त दुनिया का सिर्फ यही खित्ता आबाद था। हजरत नूह की कौम में 5 नेक और स्वाले किस्म के लोग पैदा हुए, जिन्हें देखते ही अल्लाह की याद आती। जब एक बुजुर्ग फौत हुआ तो लोगों ने बहुत ही गम महसूस किया। सदमा से निडाल होकर उसकी कब्र पर आकर बैठ गए। इब्लीस उनके पास इंसानी शक्ल में आया और कहा इस बुजुर्ग के नाम की यादगार क्यों नहीं कायम कर लेते। पहले उन्हें तस्वीर बना दी, बाद में आहिस्ता आहिस्ता बुत बनाकर उनकी इबादत शुरू करा दी, और इस बुजुर्ग का नाम वद था। और इसी तरह इनके 5 खुदा थे। इसका जिक्र सूरह नूह में आता है। और इसी कौम में सबसे पहले शिरक की इब्तदा हुई। ये बुखारी की हदीस है। हजरत नूह ने कहा ए मेरी कौम, मैं गुमराह नहीं हूँ, लेकिन मैं तो रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुँचाता हूँ और मैं तुम्हारी खैरखाही करता हूँ, और मैं अल्लाह की तरफ से वो चीजें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। तुम्हें इस बात पर ताज्जुब हुआ है कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आई है एक आदमी पर तुम में से, ताकि वो तुम्हें डराए और ताकि तुम तकवा इख्तियार करो और ताकि तुम पर रहम किया जाए। हजरत नूह की कौम को भी इस बात पर एतराज था कि एक इंसान क्यों नबी बन गया है। आज हमें भी इस बात पर एतराज है कि हमारे नबी इंसान नहीं है, हमारे नबी तो नूर हैं। आपने देखा वही बातें जो पहली कौमें कर, जिन गुमराहियों में पहली कौमें मुब्तला थी, इंसान की फितरत तो आज भी वही है। आज भी हमारी कौम को बड़ा एतराज होता है इस बात पर जब कोई कह देता है कि नबी तो इंसानों जैसे इंसान थे। यही एतराज हजरत नूह की कौम को भी था, तो उन्होंने उसको जुठला दिया। तो हमने हजरत नूह को निजात दे दी और उनके साथ जो लोग थे उन्हें कश्ती में बचा लिया, और हमने उन लोगों को गर्क कर दिया जिन्होंने हमारी आयात को जुटलाया था। वो बेशक अंधे लोग थे। और कौम आद की तरफ हमने उनके भाई हूद को भेजा। हजरत हूद ने कहा है मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तुम अल्लाह से क्यों नहीं डरते। तमाम अंबिया ने सबसे पहले जिस चीज की दावत दी है वो तौहीद की दावत दी है और शिरक से बचने की दावत दी है। ये अकीदा इंसानी
जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम होता है। अकीदा अगर गलत हो तो इसकी माफी नहीं हो सकती। अमल में अगर कभी कोई कमी बेशी हो जाए तो अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह उसको माफ कर देंगे, लेकिन अकीदे की खराबी इंसान को सीधा दोज़ख में ले जाती है। हूद की कौम की सरदारों ने कहा, हम तो तुझे बेवकूफ देखते हैं और हम तो ख्याल करते हैं कि तू तो झूठा है। हजरत हूद की कौम का नाम आद था। ये कौम आदे इरम या आदे उला के नाम से मशहूर है। ये अरब की कदीम तरीन कौम है। इनका इलाका यमन और अम्मान के दरमियान वाक़े है। आजकल ये इलाका रुबे खाली कहलाता है और सऊदी अरब के अंदर शामिल है। पूरा सहरा है, बहुत बड़ा और बेआबाद है। कौम आद के लोग बड़े ताकतवर और बड़े सरकश थे, बड़े मजबूत, बड़े ऊंचे लंबे। इनके बारे में कुरान मजीद में आता है कि ये इतने ताकतवर लोग थे कि इन जैसे हमने दोबारा नहीं पैदा किए। बड़े मजबूत, ताकतवर, खूबसूरत, ऊंचे लंबे। हजरत हूद ने कहा, ए मेरी कौम, मैं बेवकूफ नहीं हूँ और मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूँ। मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुँचाता हूँ और मैं तुम्हारे लिए खैर खाही करने वाला और अमानतदार हूँ। क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब हुआ है कि अल्लाह की तरफ से एक नसीहत आई है और वो तुम्हारे में से ही एक आदमी पर नाजिल हो गई है ताकि वो तुम्हें डराए। और याद करो जब तुम कौम नूह के बाद जमीन के खलीफा थे और अल्लाह ताला ने तुम्हें खूब तनुमंद बनाया। अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। कौम हूद को भी इसी बात की तकलीफ थी कि एक आदमी को हमारे लिए क्यों पैगंबर बनाकर भेजा गया। वो कोई एक सुपर नेचुरल हस्ती क्यों ना होता, वो एक फरिश्ता क्यों ना था, ताकि उस पर हम ईमान ले आते। हजरत हूद अपनी कौम को अल्लाह की नेमतें याद दिला रहे हैं कि जब कौम नूह गर्क हो गई तो और अब दुनिया की आबादी सिर्फ उन्हीं लोगों से हुई जो कि उस कश्ती में सवार थे। बाकी तमाम लोग जो थे गर्क कर दिए गए थे। तो इनको अल्लाह ताला ने खूब वुसअत दी, तादाद में भी और जिस्म जान में भी। खूब ताकतवर थे, ऊंचे लंबे थे, खूबसूरत थे। अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि तुम फलाह पाओ। वो कहने लगे, क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि हम अल्लाह अकेले की इबादत करें और हम छोड़ दें जो हमारे आबा अजदाद इबादत किया करते थे। तो तू हमारे पास वो अजाब ले आ जिसकी तू हमें धमकी देता है। अगर तू वाकई सच्चों में से है, हम पीछे पड़ कर आ चुके हैं कि अब तकलीद आबा शिरक की एक किस्म है। इंसान चूंकि अपने बाप दादा से अकीदत और मोहब्बत रखता है, लिहाजा समझता है कि शायद ये ठीक रास्ते पर हैं, हालांकि आबाओ अजदाद भी बाज़ औक़ात गलती पर और शिरक पर होते हैं। हजरत हूद ने कहा, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे रब की तरफ से अल्लाह का गजब और अजाब नाजिल हो चुका। क्या तुम मुझे ऐसे नामों के बारे में झगड़ते हो जिनको तुमने खुद रख लिया और तुम्हारे बाप दादा ने, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कोई दलील नहीं उतारी। इनके भी बहुत से बुत थे जिनको ये हाजत रवा, मुश्किल कुशा वो समझा करते थे। तो हजरत हूद उन्हीं के बारे में कह रहे हैं कि उनकी कोई हकीकत नहीं, वो सिर्फ नाम हैं जो तुमने और तुम्हारे माँ बाप ने रख लिए। अल्लाह ताला ने उसके बारे में कहीं भी कोई दलील नहीं उतारी। किसी किताब में, किसी आयत में अल्लाह ताला ने आज तक नहीं ये कहा कि इन लोगों को मैंने अपने इख्तियारात में शरीक कर रखा है, बल्कि इसके ऑपोजिट अल्लाह ताला ने ये जरूर कहा कि मेरे सिवा कोई शरीक नहीं। तो तुम अजाब का इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में से हूँ। तो हमने हजरत हूद को निजात दे दी और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए थे अपनी रहमत के साथ, और हमने उन लोगों की जड़ काट के रख दी जिन्होंने हमारी आयत को जुटलाया था और वो ईमान लाने वाले न थे। कौम आद पर शदीद आंधी का अजाब मुसल्लत हुआ जो कि 7 रातें और 8 दिन चलती रही। उनके जमीन दोस्त घरों में घुसकर उन्हें पटक पटक कर मारती रही। उनकी हालत ऐसी हो गई जैसे खजूर के खोखले तने हों। हजरत हूद और उन पर ईमान लाने वाले अल्लाह के हुक्म से पहले ही कौम से अलहदा होकर अल्लाह के अजाब से बच गए और उन्हीं की औलाद से कौम समूद पैदा हुई जिन्हें आदे सानी भी कहते हैं।
اور سمود کی طرف ان کے 22 والے کو بھیجا۔ حضرت صالح نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ان کی بھی سب سے پہلی دعوت توحید ہی کی دعوت ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے معجزہ آ چکا ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی ہے، اسے چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا تو وہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ قوم سمود جو تھی پہاڑوں میں رہتی تھی، پہاڑوں میں اپنے گھر بناتی تھی، تو انہوں نے حضرت صالح سے یہ معجزہ مانگا کہ سامنے والا پہاڑ پھٹے، اس میں سے ایک حاملہ اونٹنی نکلے اور وہ بچہ جنے، تب ہم تمہیں اللہ کا پیغمبر مانیں گے۔ حضرت صالح نے ان کے مطالبے کے مطابق اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسا ہی معجزہ دے دیا، لیکن اس معجزے کو ان کے لیے آزمائش بنا دیا۔ وہ اونٹنی اتنی بڑی تھی کہ زمین کا سارا پھل، زمین کی ساری پیداوار کھا جاتی اور زمین کا سارا پانی پی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا کہ تم باری مقرر کر لو، ایک دن تمہارے جانور کھایا اور پیا کریں گے اور ایک دن یہ اونٹنی کھایا اور پیا کرے گی، اور تم اسے برائی کے ساتھ نہ چھونا، اگر تم نے اس کو برائی کے ساتھ چھوا تو تمہیں اللہ کا عذاب آ لے گا۔ ہوا یہ کہ کیدار بن سالف ایک شخص تھا ان کے سرداروں میں سے جس کے جانور وادی میں سب سے زیادہ تھے۔ اس شخص کو اس کے جانور بھوکے اور پیاسے رہنے لگ پڑے۔ اس نے کیا کیا، اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، کیونکہ اونٹنی اتنی اونچی تھی کہ اس کے گردن تک پہنچ ہی نہ سکتے تھے۔ انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ دیے۔ جو ہی انہوں نے پاؤں کاٹے، اونٹنی نے ایک چیخ ماری اور وہ جہاں سے نکلی تھی وہیں غائب ہو گئی۔ اور پھر حضرت صالح نے انہیں بتایا کہ اب تم پر اللہ کا عذاب آ کے رہے گا، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین میں کھاتی رہے، اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا تو تمہیں دردناک عذاب آ لے گا۔ اور یاد کرو جب تم زمین میں قوم عاد کے بعد زمین کے جانشین تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس زمین میں آباد کیا، تم اس کے نرم وادیوں میں اپنے محل بناتے ہو اور پہاڑوں میں سے اپنے گھر تراشتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ ان سرداروں نے کہا جنہوں نے اس کی قوم میں سے تکبر کیا تھا، ان لوگوں کے لیے جو کہ اس کی قوم میں سے کمزور تھے اور ایمان لا چکے تھے، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنی رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں، ہم جو وہ دے کر بھیجا گیا ہے، ہاں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا جو کہ تکبر کرتے تھے، ہم اس چیز پر جس پر تم ایمان لاتے ہو کفر کرتے ہیں۔ اب قوم سمود میں سے کچھ حقیر اور کمزور لوگ جو کہ حضرت صالح پر ایمان لا چکے تھے، ان سے قوم کے طاقتور لوگ کہنے لگے کہ تمہیں یقین ہے کہ صالح اللہ کا پیغمبر ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں ہمیں پکا یقین ہے اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا، جس پر تم ایمان لاتے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے اور انہوں نے اپنے رب کے حکم سے نافرمانی کی اور کہنے لگے صالح لے آ، جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ اس قوم کی تباہی ہولناک زلزلہ اور چیخ سے ہوئی، اس چیخ سے ساری قوم مر گئی اور اس زلزلے سے ان کے محلات کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے، پہاڑوں میں تراشے ہوئے مکانات سب زمین بوس ہو گئے۔ اس قوم سمود کا جو علاقہ ہے، جب تبوک کی طرف جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کی طرف گئے تو اس قوم کا علاقہ راستے میں پڑتا تھا۔ لوگوں نے وہااں ایک کنویں سے پانی پیا تو آپ نے ان سے اس ایک کنویں کے پانی کو سے آٹا گوندا اور اس سے پانی بھرا۔ آپ نے ان کو وہ آٹا بھی استعمال کرنے سے روک دیا اور ان سے کہا کہ اس کنویں سے پانی لو جہاں سے اونٹنی پانی پیتی تھی، اور وہ آج بھی موجود ہے اور اس کو فجو ناقہ کہتے ہیں۔ تو اس کنویں سے مسلمانوں کو پانی لینے کا حکم دیا، اور دوسری جو انہوں نے پانی لیا تھا جس سے آٹا گوندا تھا، آپ نے اسے استعمال کرنے سے روک دیا۔ اور ویسے بھی اس علاقے میں، تبوک کے علاقے میں جب جائیں تو تقریباً 500 کلومیٹر کے علاقے میں
पहाड़ी सिलसिला है। और वो पहाड़ी सिलसिला जो है वो इस बात की आज भी गवाही देता है कि इस पहाड़ी सिलसिले पर एक अजाब आया था। उस पहाड़ी सिलसिले के साथ उस अजाब के असरात उस पर ये हैं कि जैसे संतरे की काशियां अलग-अलग होती हैं, पहाड़ भी इसी तरह उन पे इस तरह करके असरात हैं। 500 किलोमीटर के इलाके में ये असरात पहाड़ों पर आज भी नुमायां हैं। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि अल्लाह आपको तौफीक दे तो बजाय मरी जाने के और बजाय यूरोप जाने के इन निशानियों को देखने के लिए जाएं ताकि इंसान इबरत हासिल करे। वैसे इस सिलसिले में हमने अपने इंस्टीट्यूट में एक कोर्स कराया था जिसका नाम था अर्जुल कुरान। हमने ऐसे तमाम इलाके लोकेट करके उनकी तस्वीर के साथ और उनके नक्शों के साथ हमने प्रोजेक्टर पर ये कोर्स कराया था। और ये कोर्स जो था इंतहाई इबरतनाक था और नसीहत के लिए बड़ा बेहतरीन था। तो ऐसी तालीम हासिल कीजिए जो आपके दिल में अल्लाह का डर पैदा करे और आपके दिल में आखिरत की तैयारी का शौक पैदा करे। तो इनको जल्जले ने आ लिया तो वो अपने घरों में औंधे मुंह पड़े रह गए। तो हजरत साले उनसे फिर गए और कहा, है मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुंचा दिए थे और मैंने तुम्हारे लिए खैर खाही की थी, लेकिन तुम खैर खाही करने वालों से मोहब्बत ही नहीं रखते। और लूत जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि क्या तुम बेहयाई को आते हो जो कि तुमसे पहले जहान वालों में से किसी ने भी नहीं की, तुम मर्दों के पास शहवत के लिए आते हो औरतों को छोड़कर, बल्कि तुम तो हद से बड़े हुए हो। कौम लूत ने दुनिया में पहली मर्तबा इस फहाशी की तरह डाली कि मर्द औरतों की बजाय मर्दों की दुबर में अपनी शहवत पूरी कर लेते। इस फोश फेल में इस कौम ने इतनी शोहरत हासिल की कि इस अमल का नाम ही लिवातत पड़ गया। यानी ऐसा फेल जिसके खिलाफ हजरत लूत ने जिहाद किया। रही सही कसर जदीद मगरबी तहजीब और अमरीकी सकाफत ने पूरी कर दी, जहां हम जिन्स परस्तों ने बाकायदा अपने क्लब कायम कर लिए हैं, होमोसेक्सुअल्स ने, और उन्हें कानून की हमायत भी हासिल है। अब ऐसे लोगों पर अल्लाह का अजाब कैसा आया था अगली आयत में हम वो पढ़ेंगे। तो उनकी कौम का जवाब ये था कि इनको अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग तो बड़े नेक पाक बनते हैं। तो हमने हजरत लूत और उनके घर वालों को निजात दे दी। उनकी बीवी के अलावा वो पीछे रहने वालों में से थी और हमने उनके ऊपर पत्थरों की बारिश बरसाई। तो आप देखिए तो सही मुजरिमों का अंजाम कैसा होगा। हजरत लूत हजरत इब्राहिम के भतीजे थे, हजरत इब्राहिम पर ईमान लाए और हजरत इब्राहिम के साथ ही उन्होंने हिजरत भी की। हजरत लूत का और हजरत इब्राहिम का इलाका तबलीग करीब करीब थे। हजरत इब्राहिम का इलाके का फलस्तीन था और उसके करीब ही सुद्दूम की बस्ती थी। अब इसी बस्ती में हजरत लूत जो थे अल्लाह का पैगाम पहुंचाया करते थे। अब जब इन लोगों ने हजरत लूत की बात मानने से इनकार कर दिया तो अल्लाह ताला ने इन पर जो अजाब भेजा वो अजाब भी ऐसा था जो दुनिया के लिए इबरत बनकर रह गया। सबसे पहले हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इनकी बस्ती को अपने पर पर उठाया और उठा के आसमान तक ले गए और उसे वहां से नीचे फेंक दिया, उल्टा के रख दिया। उसके बाद इनके ऊपर पत्थरों की बारिश हुई। और तीसरी बात यह हुई कि जब इनकी बस्ती को हजरत जिब्रील ने पर उठाया तो नीचे गड़ा पैदा हो गया, करीब के इलाके से वहां पर पानी आ गया। तो जब उसको नीचे फेंका इस अरसे में वहां पे पानी आ चुका था और वो बस्ती जब उसमें पटकी गई तो वो बस्ती गर्क हो गई और वो पानी आज तक वहां पे मौजूद है और उस पानी का नाम है बहेराए मुर्दार, उसको कहते हैं डेड सी। और उसकी इनके गुनाह की नहुसत की वजह से वो पानी आज भी ऐसा है कि जिसमें कोई आबी मखलूक जिंदा नहीं रह सकती। ये इनके गुनाह और इनके अजाब की नहुसत है, वरना दुनिया के तमाम समंदरों में मछलियां और दूसरी आबी मखलूकात एक रिस्क के तौर पर मौजूद हैं। ये दुनिया की का वाहिद समंदर है जिसको बहेरा मुर्दार कहते हैं, डेड सी, जहां पे कोई मखलूक उसके अंदर जिंदा नहीं रहती। ये नहुसत
تب سے لے کے تقریباً 4000 پہلے سے لے کر آج تک اس کا اثر موجود ہے۔ یہ علاقہ آج بحر اردن میں ہے، اردن میں یہ علاقہ ہے۔ میپ پر دیکھیے ڈیڈ سی کو، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ حضرت شعیب نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح نشانی آ چکی۔ کون سی واضح نشانی؟ اللہ کا پیغمبر جو تمہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ ناپ اور تول کو پورا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ پیدا کرو۔ حضرت شعیب کا علاقے کا نام مدین تھا۔ یہ فلسطین کے جنوب میں بحر احمر اور خلیج عقبہ کے کنارے واقع تھا۔ آج بھی وہاں اس نام کا علاقہ، مدین کے نام کا علاقہ موجود ہے۔ قدیم تجارتی شاہراہ جو مکہ، یمن، مکہ سے ہوتی ہوئی شام تک جاتی تھی، جس پر قریش کے لوگ تجارت کر کے بہت خوشحال ہو گئے تھے، یہ اس کے راستے میں واقع تھا۔ اسی طرح ایک بہت بڑی دوسری تجارتی شاہراہ جو عراق کو مصر سے ملاتی تھی، یہ علاقہ اس کے کراس پر واقع تھا۔ ایک ادھر سے شاہراہ آ رہی تھی، ایک ادھر سے شاہراہ آ رہی تھی، اور اس کے کراس پر یہ مدین واقع تھا، لہٰذا یہ ایک بہت بڑی تجارتی منڈی بن گیا تھا۔ اب یہاں کے رہنے والے لوگ جو تھے کم تولتے، کم ناپتے، اور دوسری بات قافلوں کو، تجارتی قافلوں کو لوٹ لیتے اور زمین میں فساد برپا کرتے۔ ان کے نبی نے انہیں توحید کی دعوت کے بعد اس گناہ سے خاص طور پر روکا۔ تم زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے اگر تم واقعی مومن ہو، اور تم لوگوں کے راستے پر نہ بیٹھ جاؤ، تم انہیں دھمکیاں دیتے ہو، اللہ کے راستے سے روکتے ہو، جو بھی ایمان لے آئے تم اس میں ٹیڑھ تلاش کرنے لگتے ہو۔ یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں تعداد میں زیادہ کر دیا، اور دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ اور اگر تم میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ جو کچھ مجھے دے کر بھیجا گیا ہے اس پر ایمان لے آیا، اور دوسرا فریق ایسا ہے جو ایمان نہیں لایا، تو تم صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان